Hello and welcome to your online classes. My dear grade 10 students, this is a continuation of our Unit 3, Vegetable and Fruits Cookery. We are now going to see the subtopic 3.4, which is Effect of Heat on Vegetables and Fruits. Now, application of heat, that is, for example, when you cook them, when you boil them, or even if you have to fry any of these fruits and vegetables, what is the effect of that heat on it in different terms, be it in the color, be it in the texture, or even in the taste. So let us begin with the first criteria, that is depending on the color. Will the color change? Okay. So now let's see what happens to the color. So now the first one, the color of the vegetable is dependent on the color pigment present in the vegetable. Various color pigments present in vegetables and fruits are, now the color of the vegetable, ठीक है, जो कलर होता है हमारी सब्जी का, it is dependent on the color pigment जो उस vegetable में होता है. ठीक है, कुछ सफेद होती है, कुछ पीली होती है, कुछ हरी होती है. सो ये जो एक कलर है, ये इनमें ओरिजिनली जो इनका पिगमेंट है वही होता है. सो सबसे पहला वाला जो पिगमेंट है वो है फ्लेवोन्स. This pigment is present in white or cream colored vegetables. For example, onions, cauliflower, potato. जो थोड़ा सफेद रंग या हल्का पीला रंग का जो भी हमारी कोई सब्जी होती है उसमें जो कलर पिगमेंट होता है वो होता है फ्लेवोन्स. This pigment stays white in color in slightly acidic medium while it turns yellow in alkaline medium. For example, when a chef adds a little lemon juice to enable the vegetable to retain its color. देखें ये जो इस जो फ्लेवोन्स वाला पिगमेंट होता है, अगर हम इसे थोड़ा एसिडिक मीडियम में रखें, ठीक है, तो ये व्हाइट रहता है, लेकिन अगर अल्कलाइन मीडियम हो जाता है तो ये बिल्कुल येलो हो जाता है. सो इसके लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा नींबू का जूस मिला लेते हैं तो इनका जो ओरिजिनल कलर है वो रह जाता है, रिटेन हो जाता है. रिटेन का मतलब होता है होल्ड करना, रुकना, मतलब ओरिजिनल कलर ही रहता है, वो बदलता नहीं है. दैट्स द मीनिंग ऑफ रिटेन हियर. सो फ्लेवोन्स जो होते हैं वो व्हाइट कलर की सब्जियों में होते हैं या पोटैटोज जैसे हल्का येलो कलर की सब्जियों में. द पिगमेंट इज कॉल्ड फ्लेवोन्स. देन वी हैव क्लोरोफिल. This pigment is present in green colored vegetables. You know chlorophyll, it's the green color pigment in our plants, isn't it? So जो हमारी हरे रंग की सब्जियां होती हैं, we have French beans, which is लोबिया की फली, then we have spinach, which is पालक, then we have mustard leaves, that is सरसों के पत्ते. This pigment turns yellow in acidic medium and remains bright green in alkaline medium. ठीक है, अब ये जो ये क्लोरोफिल होता है, एसिडिक मीडियम में ये येलो हो जाता है, लेकिन एल्केलाइन मीडियम में ये ब्राइट ग्रीन ही रहता है. कीप दिस थिंग्स इन माइंड, दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, दैट क्लोरोफिल टर्न्स येलो इन एसिडिक मीडियम and remains bright green in alkaline medium. However, addition of soda to create alkaline medium destroys the cell structure of vegetable and makes it mushy. Hence, they should be cooked for short periods uncovered so as to enable volatile acids to evaporate and neutral pH is maintained. देखिए, this is a very important tip when we are cooking green vegetables. देखिए, सोडा मिलाया जाता है अक्सर ताकि हरा रंग रह जाए उसका, लेकिन हम वो सोडा तो मिला देते हैं, उससे क्या होता है, जो सेल स्ट्रक्चर होता है ना उस सब्जी का वो खत्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड वो पक पक कर गल कर बिल्कुल आटा जैसा हो जाता है. ठीक है, दैट्स मशी. इसीलिए जो हरी सब्जियां होती है ना इस तरह की, इनको हम थोड़ा कम समय के लिए पकाना चाहिए, ज्यादा 6-7 सीटियों की जरूरत नहीं होती. ओके, एंड अगर हम खुला पकाते हैं तो उसमें फायदा क्या होता है, जो वोलेटाइल एसिड्स होते हैं वो एवापोरेट होके निकल जाते हैं, तो हमारी जो पीएच वैल्यू होती है वो न्यूट्रल रह जाता है. ओके, सो रिमेंबर दिस इज अबाउट क्लोरोफिल. नेक्स्ट वी हैव कैरोटीनॉइड्स. This pigment is present in yellow, orange and some red colored vegetables. ठीक है, yellow, orange and some red colored vegetables में जो pigment होता है उसको हम carotenoids कहते हैं. For example, carrot, corns that is मक्की, भुट्टा जो होता है, ठीक है, मक्का that's yellow color के होते हैं ना उसके दाने. Then sweet potato that is शकरकंदी जिसे शकरी भी कहते हैं.
Then we have tomato, mango, pumpkin, that is कद्दू. So ये येलो कलर के होते हैं, थोड़े रेड से भी होते हैं, एंड ऑरेंज कलर के. It is relatively stable and it is not affected significantly by acidic or alkaline medium of cooking. It is fat soluble and leaches in cooking oils. देखें, इससे क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एसिडिक या एल्केलाइन मीडियम से, एंड ये फैट में इजिली सॉल्युबल भी होते हैं, एंड लीचेस इन कुकिंग ऑयल्स, दैट इज इट सेपरेट्स इटसेल्फ. जब हम इनमें बहुत ज्यादा तेल डालते हैं, पकाते हैं, ठीक है, एक पॉइंट आता है जब ये उससे अलग हो जाते हैं, ठीक है, जो ऑयल होता है वो बिल्कुल निकल जाता है, अलग होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड लीचिंग हियर, दैट्स लीचेस. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. We have the anthocyanin. This is another color pigment. It is present as the red purple color of grapes, berries, raspberries and cranberries. This appears red to blue depending on the pH value. In acidic medium, it turns red and in alkaline medium, it turns blue. अब देखें, जो हमारे grapes होते हैं, ठीक है, we have grapes, then we have berries, raspberries, cranberries. इन सभी में एक रेडिश पर्पल कलर होता है, ठीक है, जामनी रंग होता है इनमें, एंड एसिडिक मीडियम में ये लाल हो जाते हैं, एल्केलाइन मीडियम में ये ब्लू हो जाते हैं. सो एंथोसियानिन पिगमेंट रेड पर्पल कलर होता है, एंड इट टर्न्स रेड टू ब्लू डिपेंडिंग ऑन द पीएच वैल्यू. इन एसिडिक मीडियम इट टर्न्स रेड, इन एल्केलाइन मीडियम इट टर्न्स ब्लू. एग्जाम्पल ऑफ एंथोसियानिन पिगमेंट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर grapes, berries, raspberries and cranberries. The last color pigment we have is betalains. This pigment is responsible for the deep red color of beets. Beets, that is चुकंदर, okay, beetroot जिसे हम चुकंदर कहते हैं, उसका जो वो गहरा लाल रंग होता है वो betalain pigment से होता है. It is water soluble and it leaches out in the cooking liquid. Beets should be cooked whole without cutting in water, and little vinegar or lemon added to create a slightly acidic medium to retain maximum color. It should be cooked, peeled and then cut. अब देखें बीट रूट पकाने की क्या टिप है यहाँ पर, वेरी इंटरेस्टिंग. बीट्स जो होती हैं, ठीक है, दैट इज चुकंदर, कंप्लीट होल मतलब साबुत पकाना चाहिए, ठीक है, बिना काटे, एंड इसमें थोड़ा विनेगर या नींबू ऐड कर देना चाहिए. विनेगर होता है सिरका, ठीक है, यह नींबू ऐड करना चाहिए ताकि इसमें जो कलर है ना वो रिटेन हो जाए, वो इसका ओरिजिनल कलर रह जाए. जब ये पका लेते हैं तब इसे छीलना चाहिए और इसके पीसेस कट करने चाहिए. इससे क्या होता है, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी हम रिटेन कर लेते हैं, एंड इसका जो ओरिजिनल ये डीप रेड कलर है वो भी मेंटेन हो जाता है. सो चुकंदर में, दैट इज बीट रूट में जो पिगमेंट है वो है बीटालेन्स. अब जो सेकेंड इफेक्ट है वो है टेक्सचर पे. टेक्सचर पे क्या इफेक्ट होता है हीट का, लेट अस स्टडी दिस. द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज बिकॉज ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन फाइबर्स. दीज फाइबर्स आर सॉफ्टेंड विद एप्लीकेशन ऑफ हीट. वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की जो बॉडी होती है, ठीक है, इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है एंड जो शेप भी होती है, इन सब में सेलुलोज एंड पेक्टिन के फाइबर्स होते हैं, एंड जब भी हम इन पे हीट अप्लाई करते हैं ये फाइबर नरम हो जाते हैं. The more the heat is applied, softer the fibers become and the vegetable loses its firm shape. Firm का मतलब होता है something that is complete, एक perfect shape होता है. अब देखो for example potato oval shape का होता है, गोल होता है, ठीक है. जब हम उसे पकाते हैं तो उसके जो fibers हैं वो soft होते जाते हैं, जितना हम पकाएंगे वो नरम होता जाता है, and वो अपनी shape खत्म हो जाती है उसकी, it loses its shape. There are vegetables with less fibers, such as spinach, which lose its shape in boiling water quickly, or with more fibers, such as carrots or potatoes, which retain their shape for several minutes. ठीक है, अब देखिए for example spinach, that is पालक. इसके जो फाइबर्स होते हैं बहुत कम होते हैं, पत्ता ये तो होता है, ठीक है, कोई खास परफेक्ट शेप नहीं होती है, इट्स जस्ट ए लीफ. सो खाली पानी में बॉईल करने से ही इसकी शेप खत्म हो जाती है, इट लूजेस इट्स शेप, ठीक है. एंड देन कुछ जैसे कि कैरेट्स हैं, पोटैटोज हैं, इनके जो फाइबर्स होते हैं हम एक दो सीटी लगाते हैं, ठीक है, वी कुक फॉर सम टाइम, तो थोड़ा शेप रह जाती है. जितना ज्यादा और हम हीट अप्लाई करेंगे उतना ही उनकी शेप खत्म हो जाती है, ठीक है, दैट इज फाइबर्स और नरम हो जाते हैं.
The mild acidic medium, which can be created by adding lemon juice or vinegar in boiling water, make the fiber firmer and increase the cooking time. Sugar too strengthens the fibers and help the vegetable or fruit to retain its shape. On the other hand, alkaline medium, which can be created by adding baking soda, makes the vegetable soften quickly. अब देखें, जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें हम लेमन जूस या विनेगर दैट इज सिरका ऐड कर लेते हैं बॉइलिंग वाटर में, तो जो फाइबर होता है, ठीक है, वो जो है थोड़ा सा उसकी शेप को रिटेन कर लेता है. ठीक है, फाइबर्स जो होते हैं वो बिल्कुल खत्म नहीं होते, बिल्कुल चूरा नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट या नरम नहीं हो जाएगा अगर हम लेमन जूस या विनेगर ऐड करते हैं. कभी कभी चीनी भी मिलाई जाती है, उससे भी जो है वेजिटेबल या फ्रूट की जो शेप होती है वो रह जाती है. लेकिन एल्केलाइन मीडियम में, ठीक है, जिसमें हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं, उससे हमारी वेजिटेबल्स बहुत जल्दी नरम हो जाती हैं. ठीक है, सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ टेक्सचर इन अ माइल्ड एसिडिक मीडियम and in an alkaline medium. Okay, the above knowledge is applied by a chef while cooking vegetables and fruits. Sugar or acidic medium can be used to cook fruits and vegetables when, apart from cooking, retaining shape is important. देखें, ये जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन है ये शेफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें जो है शेप रिटेन करना भी बहुत जरूरी होता है. अगर आपने पोटैटोज पकाए हैं, ठीक है, पोटैटो क्यूब्स चोकोर चोकोर पीसेस पकाकर, ठीक है, कोई डिश बनाई है, अगर आपने बहुत ज्यादा उस पर हीट अप्लाई करी कि उसके सारे फाइबर नरम हो गए, उसकी शेप जो आपने कट करी थी चोकोर पीसेस में वो बिल्कुल फ्लैट हो गए, ठीक है, तो वो अट्रैक्टिव भी नहीं लगता है. सो रिटेनिंग शेप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रॉपर कुकिंग. Alkaline medium is usually not used as the vegetables and fruits get mushy and lose shape and appearance completely. अब कुछ वेजिटेबल्स जो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी बिल्कुल गल जाते हैं, उनकी शेप भी खराब हो जाती है, बहुत नरम हो जाते हैं, वो जो था रहता ही नहीं. अब फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, आप उसे हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे ना, हल्का सा मतलब तड़का लगा के भूनेंगे, वो ठीक है, उसके जो बर्ड्स होते हैं, फूल होते हैं, वो झुके तो रहते हैं. पर अगर आपने उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर कुकर में सीटीज लगा दी, ठीक है, वेसल्स उनमें प्रेशर बना दिया, वो बिल्कुल चूरा हो जाता है. It loses its shape completely. फिर वो appearance में भी attractive नहीं लगेगा. Most vegetables should be cooked to still retain their shape and be tender enough to eat. So जो सब्जियां होती है उनकी जो ट्रिक होती है वो ये है कि आप उन्हें पकाएं, ठीक है, नरम होना चाहिए कि हम उन्हें खा सकें, डाइजेस्ट हो जाएं, लेकिन उनकी शेप भी रहनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Make sure you apply this. The ladies of course. Okay, then the third part is the flavor. ठीक है, जो फ्लेवर होता है हीट एप्लीकेशन पे, इससे क्या फर्क पड़ता है? Flavor and nutrients are leached out in cooking liquid, especially if cooked for long time. अब देखें, अगर आप बहुत देर तक पालक, ठीक है, स्पिनच को बॉईल करते रहें, तो जितना भी उसका टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, न्यूट्रिएंट, वो निकल जाता है पानी में. ठीक है, लीच, वो मतलब पत्तों में से उस पानी में बह जाएगा, निकल जाएगा उस कुकिंग लिक्विड में. ओके, अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप उसे पकाएं. हेंस, टू कंट्रोल फ्लेवर लॉस, कुक फॉर शॉर्टर ड्यूरेशंस इन लेस लिक्विड्स और स्टीम. एडिंग सॉल्ट इन बॉइलिंग वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू रिडक्शन इन लॉस ऑफ फ्लेवर इन कुकिंग लिक्विड. सो अब इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है? वो ये है कि अगर हमें फ्लेवर कंट्रोल करना है, रिटेन करना है अपनी सब्जी में, तो थोड़े कम समय के लिए पकाएं. जो पानी का लेवल है वो भी थोड़ा कम रखें, जो लिक्विड आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, नॉट नेसेसरली वाटर. अगर आप ग्रेवी में पका रहे हैं उसमें भी आप उसे थोड़ा कम रखें, ठीक है, या स्टीम में पकाएं. साथ में ही थोड़ा नमक मिला लें आप उस बॉइलिंग वाटर में, तो उससे जो है फ्लेवर कम खत्म होगा, ठीक है, कम पानी में वो निकलेगा, मतलब हमारे सब्जियों में वो रिटेन होगा. ठीक है, सो फ्लेवर इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हीट. थैंक यू.